हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबीएम के रिकॉर्ड क्वेश्चंस के बारे में। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट एबीएम, बीएफएम, बीआरबीएल एंड साथ के साथ एबीएफएम प्लस जितने भी हमारे पास 5 इलेक्टिव पेपर्स हैं सभी की पीडीएफ फाइल्स अब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं एट iibf.info। आपको सिंपली इस वेबसाइट को विजिट कर लेना है एंड वहां पर जाकर के आपको सिंपली साइन अप करना है। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड देन you are to click on PDF so as to access all the PDFs over there. So do visit right now. The website name is iibf.info and let's start the today's session over here. So the first question for today is related to the term talent management is coined by whom. यानी कि talent management जो term थी वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? First option it says McKinsey and the company 1997, SoftBank by 1993, United Nations 1995 और none of the above. तो यहाँ पर जो आंसर है related to the total management, ये टर्म यहाँ पर दी गई थी बाय द मैकेंस्की एंड कंपनी इन 1997। दिस इज अ मेमोरी रिकॉल क्वेश्चंस, काइंडली प्लीज टेक अ नोट। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एंड फर्दर इफ यू वांट टू गेट ऑल द क्वेश्चंस तो उसके लिए सेम वेबसाइट दैट इज iibf.info को आपको विजिट कर लेना है एंड वहां पर जाकर के आप सिंपली जो पर्टिकुलर हमारी वीडियोस हैं एंड फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो डू विजिट iibf.info एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। राइट नाउ लेट्स मूव further toward the next question. Over here we are provided with the data that the current asset is given to be 1660 and the CR, that is the current ratio, is given to be 2:1. Now the current ratio is equal to current assets divided by the current liabilities over here and that is given to be 2:1 over here. So we need to calculate the net working capital, that is the NWC, and this type of questions which are the numerical questions are given without option right now. Okay, तो आपको इसी बेस पर उनका आंसर देना होता है। So current assets हमें already दिए हुए हैं, so we can say कि current assets divided by current liabilities is equal to current ratio. Now the current assets are given to be 1660 over here and we have to find out the current liabilities from this particular equation, which will become equal to what? Basically it will come equal to 1660 divided by 2, that makes it 830. So we can simply be calculating CL from here, that comes out to be 830 from this particular equation. Now what is NWC? NWC is actually the amount which is right now available with the firm for the day-to-day business purposes. Over here the net working capital is equal to current assets minus current liabilities, so that is basically equal to, we are given the current assets to be 1660 and we just calculated the current liabilities to be 830 over here, so we can say the net working capital which is available over here is 830 for this particular question and that will be the answer for this question. The next question is related to the characteristics that varies from individual to individual. Actual में this question is about the data over there. तो अगर हम डाटा की क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरीकों से हम इसकी क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। वन, इट इज रिलेटेड टू द वेरिएट्स, VARITES, and the other one it's related to attributes over here. And particularly when we are talking about the variates over here, it is actually related to characteristics which are varying from individual to individual, but those can expressed in the numerical terms, यानी कि हम उनको numerical terms में दर्शा सकते हैं, उसको हम variate कहते हैं। जबकि in the same manner when particularly one thing varies from individual to individual but cannot be expressed in numerical terms over there, तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। लाइक अगर वेरिएट के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वेजेस हो सकते हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू हाइट, इट कुड बी रिलेटेड टू द प्राइसेस ऑफ द गिवन कम्युनिटी। ठीक है, तो वो चीजें किस में आती हैं? वेरिएट में आती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एट्रीब्यूट्स, like when we talk about the color of the ball, which cannot be basically as a number over there, that's actually forms a attribute over there. Now the characteristics that varies from individual to individual as per this particular question, it is attributes over there. So our right answer will be option C over here. But what if attribute as well as variate both were given in the options? तो हम दोनों को मार्क करके आते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया होता A and B both या B and C both। ठीक है, तो आपको इस तरह की कुछ चीजों का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। Now let's start with the next question over here. It says if the fixed cost per month is given to be 20,000 rupees and variable cost is given to be 10 rupees over there, selling price is given and we need to calculate the break even point over here. Now देखिए इस तरह के क्वेश्चन में काफी ज्यादा सिंपल सा फंडा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है एंड फॉर द वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। नाउ वी कैन इजीली बी कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड हमारे पास अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, दैट द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट्स ऑफ द सेलिंग प्राइस इज देयर माइनस द
particular variable cost, that is your contribution over there. Now the selling price over here is 30 and variable cost is 10 rupees over there, so the contribution over here is 20. Now we need to look into the factor कि ये variable cost हमारी fixed cost को कब यहाँ पर set off करेगी, that is particularly your break even point. So break even point is equal to what? It is equal to 20,000, which is our variable cost, and further fixed cost, and divided by the contribution, that is equal to 20 over here. So it will be equal to what? It will be equal to 1,000 over here. So that is our break even point. Right now it means what? It means that when we will be selling at least 1000 units, in that particular scenario only we will be able to cover our all the cost over there, that is there will be no profit no loss situation. Okay, तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं. आई होप कि आपको ये पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. एंड लेट मी टेल यू अगेन कि फुल कोर्स जो पीडीएफ्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज iibf.info. सो सिंपली डू विजिट द वेबसाइट iibf.info एंड यहां पर जाकर के आप पर्टिकुलरली जो फ्री पीडीएफ्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू व्हाट इज आरबीआईए. तो आरबीआई क्या होता है? रैंडम बिजनेस इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट और रेगुलेटरी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एट रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रियल एनालिसिस ओवर हियर. सो आरबीआई जो होता है दैट्स एक्चुअली रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट. ऑप्शन बी जो है दैट इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर ओवर हियर. सो ये मैंडेटेड किया गया था कि जितने भी हमारे पास एससीबीज यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इस आरबीआई को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स इसमें शामिल नहीं है. साथ के साथ वो सभी एनबीएफसीज जो कि यहां पर पर्टिकुलरली किसी भी साइज की हो उनको आरबीआई को इंप्लीमेंट करना होगा, लेकिन सिर्फ वो एनबीएफसीज जो कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, ऐसी कोई एनबीएफसी नहीं, जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं उनको पर्टिकुलरली यहां पर इसे इंप्लीमेंट करना होगा. इसके अलावा ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज जो है वो 5000 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो अगर मैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की भी बात करता हूं उनको भी करना पड़ेगा अगर उनका जो साइज है डेट इज ग्रेटर देन 5000 सीआर ओवर हियर. एंड इसी तरह से जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका जो साइज है वो 500 करोड़ से ज्यादा है उनको भी आरबीआई को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज बैंक शैल make what percentage of provision in respect of all unreconciled debit entries in the nostro accounts which are outstanding for more than 2 years over here. So nostro account सबसे पहले क्या होता है? Let's say कि इसकी बैंक ABC is over here and बैंक ABC जो है वो अपने फॉरेन बैंक ऑपरेशंस को चला रहा है PQR बैंक के थ्रू which is actually there in USA. ठीक है, तो इसका अपना कोई वहां पर बैंक नहीं है, इसकी कोई अपनी सब्सिडरी ब्रांच नहीं है वहां पर. इट्स बेसिकली ऑपरेटिंग इट्स अकाउंट थ्रू द बैंक PQR which is actually there in USA, right? एंड इसके लिए एक फॉरेन करेंसी अकाउंट को अपने ओपन करता है PQR बैंक में जिसके थ्रू ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन करेगा. नोस्ट्रो का मतलब ये होता है आवर अकाउंट विद यू, ठीक है, तो हमारा जो अकाउंट आपके पास है दैट इज द नोस्ट्रो अकाउंट ओवर हियर. अब इस अकाउंट में अगर कोई डेबिट एंट्रीज 2 साल से टाइम पीरियड के ज्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग रहती है तो उसके केस में बैंक्स के लिए मैंडेटरी है कि वो कितना प्रोविजन मेंटेन करेंगे. द बैंक्स आर टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 100% इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. एंड ये क्वेश्चन भी जो पूछा गया था वो बिना ऑप्शंस के यहां पर पूछा गया था, तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पर आंसर पोस्ट करना होगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज फुल फॉर्म ऑफ BATNA. नाउ इट बेसिकली सेज बेटर अल्टरनेट टू नेगोशिएट अरेंजमेंट्स, बेटर अल्टरनेट टू नेगोशिएट अरेंजमेंट, बेटर अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड agreement over there, और बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड अग्रीमेंट ओवर हियर. सो BATNA की जो फुल फॉर्म होती है दैट्स एक्चुअली टू बेस्ट अल्टरनेटिव. सो इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड अग्रीमेंट ओवर हियर. एंड व्हाट इज एक्चुअली द BATNA स्टैंड्स फॉर, यानी कि सबसे ज्यादा जो एडवांटेजेस यानी कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट जो यहां पर कोई सिचुएशन रहने वाली है किसी पर्टिकुलर काउंटर पार्टी के लिए अगर यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फेल हो जाता है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई अग्रीमेंट हो गया, वो नहीं बन पाया, उसके केस में जो काउंटर पार्टी होगी उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा रहेगा? दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय द टर्म BATNA ओवर हियर. आई होप दैट इज पर्टिकुलरली क्लियर टू यू. क्वाइट इजी बट येट इफेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि ये इस बार भी पूछा गया था. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. It says that we need to calculate the median for the given data.
and we are provided with the data over there. The numbers are given 0, 1, 7, 10 and so on over here, and the different options are given. Now सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सी, आपको हो सकता है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी हो, या फिर हो सकता है कि आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी हो. इफ इट इज गिवन टू बी इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको दो चीजों को कैलकुलेट करना है कि n/2 टर्म कौन सी है एंड n/2 + 1 टर्म कौन सी है, एंड इनका जो एवरेज होगा दैट विल बी योर आंसर. एंड अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसके केस में आपके पास जो यहां पर पर्टिकुलर टर्म रहेगी, ऑड नंबर की टर्म रहेगी, दैट विल बी योर आंसर रिलेटेड टू द मीडियन ओवर हियर. लेकिन एक चीज को यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि whensoever you need to calculate the median over here, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि जो आपके पास टर्म्स गिवन है उनका ऑर्डर क्या है. वी नीड टू बेसिकली राइट ऑल द टर्म्स इन द असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल. जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही सारी की सारी टर्म्स दी हो. जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर देखें तो आपके पास ऑलरेडी सारी की सारी टर्म जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बट इट मे नॉट बी द केस. ठीक है, अगर दी हुई तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी होती तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी पड़ेगी. So first of all we'll be writing all the terms like ascending order में terms लिख लेंगे 0, 1, 7, 10, 27 and 54, 68, 87, 93 and 106 over here. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we are having the even number of terms with us. जब आपको even number of terms दी होती हैं तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको n/2 टर्म कैलकुलेट करनी है. n/2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, so 10 divided by 2 that is equal to fifth term. आपके पास फिफ्थ टर्म कौन सी है? This is your first term, second, third, fourth, fifth. So it is particularly 27. आपके पास फिफ्थ नंबर पर जो टर्म है that is 27 and n/2 + 1 का मतलब है सिक्स्थ टर्म, that is particularly 54 over here. अब इन दो टर्म्स का आपको क्या कैलकुलेट करना है? We need to calculate the average of these two. And average कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is 27 divided by 54 divided by 2 over here. So it will be equal to what? It will be equal to 81 divided by 2 over there, that is equal to 40.5. So our answer over here will be 40.5 in this particular scenario. I hope कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स एज्यूम वन थिंग मोर, आपके लिए ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस रहेगी. लेट्स से केस की सिर्फ 93 तक टर्म्स हैं, उसके केस में फटाफट से आप मीडियन को कैलकुलेट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा व्हाट विल बी द मीडियन फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज इफ 106 इज नॉट देयर. ओके, सो पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन हमारा जो आंसर है दैट इज एक्चुअली ऑप्शन बी, दैट इज 40.5. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो इट सेज the largest value over here in the frequency distribution is given to be 100 and the lowest is given to be 40, right? So particularly what is given that we are provided with frequency distribution, यानी कि जो आपकी frequency distribution है, values जो range है वो 40 to 100 तक आपकी चल रही है. and if number of क्लास इंटरवल इज 6, यानी कि क्लास इंटरवल का नंबर 6 है. क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? जैसे कि यू आर पर्टिकुलरली हैविंग 70 to 80 और 80 to 90, so that is particularly related to two classes over there. So number of class intervals over here are given to be 6 in this particular scenario and we need to calculate कि क्लास की width क्या है. जैसे कि 70 to 80 and 80 to 90 है, इस केस में जो क्लास की width है that is actually 10 over here. तो सेम मैनर में हमने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो आपके पास width है वो पर्टिकुलर क्या रहने वाली है. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो पर्टिकुलरली हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन की दैट इज 100 एंड लोएस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू 60, दैट इज इक्वल टू नॉट 60, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 40 ओवर हियर. अकॉर्डिंगली हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे. सो यहां पर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का दैट इज इक्वल टू 60 ओवर हियर एंड क्लास इंटरवल जो है वो कितना आ रहा है दैट इज गिवन टू बी 6 ओवर हियर डिवाइडेड बाय 6. तो आपके पास यहां पर जो आंसर रहेगा दैट इज इक्वल टू 10. तो अगर हमें यहां पर क्लास इंटरवल हमारे पास 6 है एंड रेंज आपके पास 40 to 100 की है, उस केस में आपकी जो यहां पर विड्थ ऑफ क्लास रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 10 ओवर हियर, राइट? सो यहां पर सिंपल सोबर सा हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 10. अगर आपको वो कहते हैं कि क्लास इंटरवल जो है दैट इज इक्वल टू पर्टिकुलरली 12 ओवर हियर और समथिंग, तो हमारे पास यहां पर जो विड्थ ऑफ क्लास होती है वो यहां पर चेंज हो जाती. दैट वाज द एक्चुअल सिनेरियो रिलेटेड. तो यहां पर हमारे पास जो इंटरवल बनेंगे वो बन जाएंगे 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100 over here. ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4,
5 and 6. These are our different class intervals which are present. Okay, so that will be related to this particular scenario. I hope कि आपको यहाँ पर ये point clear हो गया होगा. Now let me just tell you that full course is available at iibf.info. So हमारा अभी ऑफर चल रहा है, यानी कि 31st of December तक का ऑफर है, जहां पर आपको 1999 में आपको 12 मंथ्स की यानी कि पूरे के पूरे एक साल की वैलिडिटी मिल जाती है, जिसमें आपके पांचों के पांचों CIB के पेपर जो है वो कवर रहने वाले हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू ABM, BFM, ABFM, BRBL, एंड पांचों के पांचों जो इलेक्टिव पेपर्स हैं वो इसी एक पर्टिकुलर पैक में कवर रहेंगे फॉर 1 year ऑफ द वैलिडिटी. सो डू बेसिकली विजिट द वेबसाइट iibf.info, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड डेफिनेटली वी आर टू क्लियर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड आप हमारी फ्री PDFs को भी एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू. सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.